glorious name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim. Welcome to Dr. Najam's lectures. In this lecture, we will discuss about the neurology, that what is the neurology, and under the neurology, what we will study. Okay, so let's start the topic. As we know that the term neurology is being taken from a Greek language. Which language? Greek language. Okay. The term neurology is being taken from a Greek language and composed of two main words. कितने words हैं? दो words हैं. Number one is the neuro or neuron, and number two is the logy. So the term neuron or neuro, which means the string or the nerve. String or the nerve. While the logy means the study. So what is the meaning of neurology? And neurology means study about the nervous system. So what is the neurology? And neurology, it is a branch of the medical science or medicine which deals with the study about the nervous system. Okay. So under the neurology, what we will study about the nervous system? We will study about the structure of nervous system. We will study about the organization of nervous system. We will study about the particular function of the nervous system. We will study about the coordination of nervous system with the other systems of the body. Okay. So let's start the nervous system. But before starting the nervous system, I would like to tell you about the control and coordination. So you must have a little bit concept about the control and coordination, that what is the control and coordination and why this control and coordination is important in our life or important in our whole body. Okay. So the term control. So अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो हमारे अब्बा के पास कंट्रोल है. अगर आपको वो मना करेंगे बेटा घर से 12 बजे के बाद नहीं निकलना, तो ये क्या है? कंट्रोल है. मतलब आपके अब्बा हुजूर जो हैं वो आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं. लेकिन इसी कंट्रोल की अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड के अंदर या बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर या मेडिकल साइंस के अंदर, तो ये कंट्रोल क्या है? बेसिकली कंट्रोल इज द पावर. कंट्रोल क्या है? अ कंट्रोल इज द पावर. अब हमारे ज़हन के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि कंट्रोल किस चीज़ की पावर का नाम है? अ कंट्रोल इज द पावर ऑफ रीस्टेनिंग और रेगुलेशन. किस चीज का पावर है? अ कंट्रोल इज अ पावर ऑफ रीस्टेनिंग एंड रेगुलेशन. अब ये पावर तो है रीस्टेनिंग का और रेगुलेशन का, लेकिन इस पावर से हम कर क्या सकते हैं? सो व्हाट इज कंट्रोल? अ कंट्रोल इज अ पावर ऑफ रीस्टेनिंग और रेगुलेशन बाय व्हिच समथिंग कैन बी स्टार्टेड. व्हाट इज दिस? समथिंग कैन बी स्टार्टेड. ये जबान समझ में आती है कि ये टर्म कुछ स्टार्ट हुआ है. So control is the power of restraining or regulation by which something can be started. Something can be slowed down. Something can be slowed down or something can be stopped. This is the definition of control in a field of medical science. A control is the power of restraining or regulation by which something can be started, something can be slowed down or something can be stopped. This is the control. Okay. And next term we have a coordination. That what is the coordination? Basically बचपन से आपको स्कूल के अंदर भी यही सिखाया गया है या आपके माहौल के अंदर भी यही सिखाया गया है कि आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें. तो वो वाला कोऑर्डिनेशन और ये वाला कोऑर्डिनेशन भी सेम ही है. कैसे सेम है? आपको पता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? अ कोऑर्डिनेशन इज वर्किंग ऑफ all parts of the body together. क्या है coordination? A coordination is working of all parts of the body together. जिस्म के आपकी बॉडी के अंदर या आपके जिस्म के अंदर जितने भी उज़्वे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपका हार्ट है, आपकी लंग्स हैं और आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं, अगर वो सारे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बोलेंगे. सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? अ कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी or a system together is known as the coordination. For example, I have this marker and I holding this marker by mean of my 5 fingers. This is the example of coordination.
Here, where is the coordination? These 5 fingers are performing function in order to hold this marker. So what is this? This is the coordination of these 5 fingers which are performing in order to hold this marker. For example, these 2 fingers are not want to work in a coordination. So what will happen? I will not hold this marker particularly. If these 3 fingers are not performing in a coordination way, so what will happen? These 2 fingers will not hold this marker or grip this marker in a particular way. So this is the important meaning about the coordination. If we talk about the human body, we have a very beautiful system. You know this name. What is that system? We have a system which is very beautiful, that is known as the cardiovascular system. दिल तो पागल है, आपने ये सुना होगा। हर कोई यही कहता है कि दिल तो पागल है। हकीकत में दिल तो पागल नहीं होती, क्योंकि दिल का काम क्या है? इट इज अ मस्कुलर एंड पंपिंग ऑर्गन। तो बहरहाल मैं आपको कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल दे रहा था। तो कोऑर्डिनेशन के एग्जांपल में क्या होता है कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन है जिसको हम नाम देते हैं दीवानगी नहीं, जिसको हम नाम देते हैं हार्ट का। तो हार्ट क्या है? बेसिकली इट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। अब इसका काम क्या है? पंप करना। अब ये ब्लड क्यों पंप कर रही है? इन ऑर्डर टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स, इन ऑर्डर टू सप्लाई द ऑक्सीजन टुवर्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपको पता है कि ये जो हार्ट है, ये सिर्फ अपने सेल्स के लिए ऑक्सीजन नहीं ले रही लंग्स से। ये जो हार्ट है, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स अपने सेल्स को प्रोवाइड नहीं कर रही है, बल्कि ये जो हार्ट है वो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ये ऑक्सीजन भी फ्राहम कर रही है और एनर्जी भी फ्राहम कर रही है, आपके न्यूट्रिएंट्स भी फ्राहम कर रही है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ वर्किंग। एंड ये काम किसके अंडर में कर रही है? आपके नर्वस सिस्टम के अंडर में कर रही है, आपके ब्रेन के अंडर में काम कर रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन का। तो यहां से ही आप सीख सकते हैं कि आप सिर्फ अपने लिए ना जियो। जैसे कि आपकी जो हार्ट है वो सिर्फ अपने लिए खाना नहीं खा रही है, बल्कि ये हार्ट और डिफरेंट सेल्स के लिए भी न्यूट्रिएंट्स ले रही है और वो उनको प्रोवाइड कर रही है। मतलब अपने लिए ना जिए, दूसरों के लिए भी जिए। ये है जिंदगी का मतलब, और यही है कोऑर्डिनेशन का मतलब। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको एक ब्यूटीफुल सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर जिसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपका एक ऑर्गन है जिस ऑर्गन को हम नाम देते हैं लंग्स का। ठीक है, पेयर की फॉर्म में ऑर्गन मौजूद है, लंग्स हैं जिनका काम क्या है? ऑक्सीजन को टेक करना। लेट सपोज आप सिंपल में बात कर रहे हैं ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए इजीली और कोऑर्डिनेशन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये जो लंग्स हैं वो भी ऑक्सीजन अपने लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये ऑक्सीजन हर एक सेल्स के लिए ले रहे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। लेट सपोज लंग्स की जो है ना स्टमक के साथ दुश्मनी हो जाए कि स्टमक उसको खाना ना दें, डाइजेस्ट करके ना दें, या इंटेस्टाइन उनको खाता डाइजेस्ट ना करें, तो लंग्स उनको ऑक्सीजन ना दें, तो क्या होगा? ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं रहेगी। तो अल्लाह ने जो हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म बनाया है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन वाला मैकेनिज्म है। हर एक जो ऑर्गन है, हर एक जो उज़्वा है, हर एक जो सेल है, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाय मीन ऑफ द कोऑर्डिनेशन। ओके, क्लियर? So what is the coordination? A coordination is the working of all parts of the body or all systems of the body together is known as the coordination. Okay. अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, हमारी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन पाया जाता है वो बेसिकली 2 किस्म की कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। एक को हम बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरी को हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब हुआ क्या कि रात को मैं सोया हुआ था बिस्तर में, तकरीबन 12 बजे का टाइम था। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों मेरे पास आ गए और उन्होंने बोला कि हम दोनों जो है ना आपस में लड़ गए हैं। मैंने बोला कि क्यों लड़े हो आपस में? तो उन्होंने बोला कि हमारे बीच में कुछ इख्तलाफ हैं, वो आप सॉल्व करें। मैंने कहा कि चलो इख्तलाफ सुनाओ। तो सबसे पहले मैंने नर्वस सिस्टम से जब पूछा कि आपका जो मेड अप है, आप किस चीज़ से बने हुए हो,
तो पता है नर्वस सिस्टम ने मुझे क्या जवाब दिया? नर्वस सिस्टम ने मुझे बोला कि मैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन हूं, या नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम मैंने बोल दिया, या नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन ने मुझे बोला कि मैं जो बना हुआ हूं वो न्यूरॉन से बना हुआ हूं। और आपको पता है कि न्यूरॉन क्या होता है? अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्लियर? और केमिकल कोऑर्डिनेशन आगे से मुझे कहता है कि मैं जो बना हुआ हूं किसका हूं? सीक्रेटरी सेल्स का। अब आपको पता है सीक्रेटरी सेल्स कौन से होते हैं? सीक्रेटरी सेल्स अ टाइप ऑफ सेल्स, सिंपल डेफिनेशन बनाते हैं, अ टाइप ऑफ सेल्स दोज सीक्रेट समथिंग इज नोन एज सीक्रेटरी सेल्स। अब सीक्रेटरी सेल्स को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। अब ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सीक्रेशन करना। आपकी माउथ के अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है? उनका काम क्या है? आपकी माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करना। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनका काम क्या है? पर्टिकुलर सीक्रेशन करना, ठीक है? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन ने मुझे क्या बताया कि मैं जो सीक्रेट बना हुआ हूं वो किससे बना हुआ हूं? सीक्रेटरी सेल्स का बना हुआ हूं। और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन ने मुझे जो बताया उसने बोला कि मैं न्यूरॉन्स का बना हुआ हूं। और न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। ओके, मैंने कहा कि चलें ठीक है, अगला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आप दोनों के बीच में तजाद किस किस का है। ओके, मैंने पूछा कि आपकी फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हैं? तो आगे से मुझे नर्वस सिस्टम बोला कि मैं फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन जो है ना वो नर्व इंपल्स है। कौन सी है? नर्व इंपल्स है। अब आपको पता है कि नर्व इंपल्स क्या होती है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स, ठीक है? हम याद बात करें फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन की, ठीक है? तो फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इसने नर्वस सिस्टम ने क्या बोला, या नर्वस कोऑर्डिनेशन ने मुझे क्या बोला कि मेरी जो फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स से आने से पहले मैं आपको इंपल्स का कॉन्सेप्ट देना पसंद करूंगा कि आपकी इंपल्स क्या होती है। बेसिकली हम इंपल्स बोलते हैं एक्शन ऑफ फोर्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। सिंपली एक्शन ऑफ फोर्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। सो व्हाट इज इंपल्स? Impulse is action of force in very short time. अब हुआ क्या कि मैंने इस हाथ से इस हाथ को मारा, टाइम की लिमिट कितनी थी? थोड़ी थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंपल्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी क्या है? ये एक फॉर्म है ट्रांसमिशन का, मैसेज को कन्वे करने का फॉर्म है। अब आगे से केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले हमें बोल रहे हैं कि हम जो फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन हमारा जो है वो क्या है? केमिकल्स का है, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। अब हार्मोन्स क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज कन्वे करते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी क्या करती है? मैसेज को कन्वे करती है, एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक। ओके, अब तीसरा मैंने जो उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है? आगे से मुझे नर्वस सिस्टम बोलता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन मुझे बोलती है कि मेरा जो पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन सा है? नर्व फाइबर्स है। अब नर्व फाइबर्स कौन से होते हैं? एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स। आगे हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में एक्सॉन कैसे होते हैं, डेंड्राइट कैसे होते हैं। और आगे से केमिकल कोऑर्डिनेशन बोल रहा है कि मेरा जो पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन सा है? ब्लड प्लाज्मा है। मतलब कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होती है। और वहाँ पे जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे कैसे होती है? नर्व फाइबर के थ्रू होती है। मतलब कि नर्व फाइबर के अंदर आपका मैसेज कन्वे होता रहता है, एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक, ठीक है? अब चौथा सवाल कौन सा है? स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। नर्वस बोलता है कि मेरी जो स्पीड है ना वो सबसे फास्ट है, हो भी फास्ट, क्योंकि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, एक्शन हो रहा है, फोर्स का इन वेरी शॉर्ट टाइम, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेज जा रहा है, तो इस वजह से क्या हो गया? फास्ट हो गया। आगे से केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलता है कि मेरी जो स्पीड है ना वो स्लो है। अब इसकी स्पीड स्लो क्यों है? क्योंकि इसका जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो किसके अंदर मैसेज कन्वे हो रहा है? ब्लड स्ट्रीम में कन्वर्ट हो रहा है। अब ब्लड स्ट्रीम की स्पीड इलेक्ट्रिकल इंपल्स से क्या है? कम है, तो इस वजह से क्या हो गया? ये स्लो हो गया। ओके, अब जो चौथा क्वेश्चन है वो है ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट। अब जो इफेक्ट है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? नॉर्मली तौर पे नर्वस कोऑर्डिनेशन की स्पीड क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म नहीं होती। मतलब कि कुछ वक्त तक, कुछ लम्हे तक आपको क्या कहते हैं? ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट महसूस होगा। अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, इसकी क्या होती है? लॉन्ग टर्म होती है, मतलब कि लंबे अरसे तक वहां पे आपको इफेक्ट फील होगा। लास्ट जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा वो कौन सा है? रिस्पांस।
अब नर्वस कोऑर्डिनेशन बोल रही है कि मेरा जो रिस्पांस है वो लोकलाइज्ड है, जो काम बोलोगे मैं वही करूंगा। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के क्या काम है, उसका जो रिस्पांस है वो लोकलाइज है, मतलब पर्टिकुलर एरिया पे है। अगर मैं आपसे बात करूं कि लेट्स सपोज दिस इज द मार्कर, आई एम हिटिंग दिस मार्कर टू माई हैंड, तो रिस्पांस किस जगह पे हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया पे हो रहा है। वाइल अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता, दो किस्म है यहाँ पे, ठीक है। या तो वाइड स्प्रेड होती है, ठीक है, और वहां पे स्पेसिफिक टारगेट होता भी है, नहीं भी होता। ये डिपेंड करता है सेल्स के पास कौन कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अगर सेल्स के पास रिसेप्टर हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा, और सेल्स के पास रिसेप्टर नहीं है तो वो क्या होगा, वो सेल इफेक्ट नहीं करेगा, उस सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और मे बी अदर सेल्स कैन बी इफेक्टेड। अब मे बी अदर सेल्स कैन बी इफेक्टेड, मैं आपको बात बताता हूं। लेट सपोज आपकी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जिसको हम नाम देते हैं थायराइड ग्लैंड का। क्या नाम देते हैं, थायराइड ग्लैंड का। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो दो किस्म के हार्मोन्स को रिलीज करता है, आपको पता है ना। कौन से दो किस्म होते हैं, एक होता है थायरोक्सिन, क्या नाम है उसका, थायरोक्सिन। अब दूसरा जो हार्मोन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रायोडोथायरोक्सिन, ट्रायोडोथायरोनाइन, ठीक है। ये दो किस्म के हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, आपका थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। अब ये जो दो किस्म के हार्मोन्स हैं ना, बड़े शरारती किस्म के हैं। ये बॉडी के हर एक उज़वे पे इफेक्ट करते हैं ताकि वहां पे ग्रोथ हो जाए, मैच्योरिटी हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। तो ये क्या करता है, थायराइड बॉडी के डिफरेंट सेल्स पे इफेक्ट कर रहा है, मैनी सेल्स पे एट अ टाइम इफेक्ट कर रहा है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लोकलाइज्ड नहीं है, एक जगह पे इफेक्ट नहीं कर रहा। वाइल नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, वो इफेक्ट है। अब उसके बाद मैंने इन दोनों को ये बोला कि देखें नर्वस कोऑर्डिनेशन आपका एक बॉडी के अंदर पर्टिकुलर काम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन आपका भी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर काम है। तो लिहाजा आप भी अपने आपस में कोऑर्डिनेशन में रहें, एक दूसरे से लड़ाई ना करें, और बॉडी का जो आपका जो फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। तो लिहाजा इन दोनों के बीच में सुलह हो गई, और अभी आप हम सब के जिस्म में और मेरे जिस्म में भी जो ना ये केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी आपस में काम कर रही है। ओके, अब देखें, ये तो आ गई बात आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। आपको पता चल गया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताऊंगा नर्वस सिस्टम की, देन हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि नर्व टिश्यू क्या होता है और नर्वस सिस्टम है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे पास एक नाम आता है, ठीक है, जिसका नाम है हीरोफिलस। क्या नाम है इसका, हीरोफिलस। सो हीरोफिलस ही वाज द फर्स्ट वो एग्जामाइंड द एंड रिपोर्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर को किसने एग्जामाइन किया था, हीरोफिलस ने। तो हीरोफिलस वाज द फर्स्ट वो एग्जामाइंड द एंड रिपोर्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इस पर स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम को सबसे पहले एग्जामाइन किसने किया था बेटा, हीरोफिलस ने। दूसरे हमारे पास तीन नाम हैं, उनमें से एक नाम वो होगा जो आपको बार बार तंग कर रहा होगा, वो जगह पे आपने उसको सुना होगा, 2-3 मरतबा आपने उसको सुना होगा, ठीक है। अहनबैग आपने नहीं सुना होगा इतना, रीमेक इतना नहीं सुना होगा, लेकिन ये वाला जो है ना वो थोड़ा शरारती है, पुरकंजी। आपने सुने होंगे पुरकंजी फाइबर, ठीक है, सुने होंगे ना। अगर आपने सुने हुए हैं और उनका फंक्शन क्या होता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि पुरकंजी फाइबर का क्या काम होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसी पुरकंजी ने वो डिस्कवर किया था पुरकंजी फाइबर। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया है, अहनबेग, रीमेक और पुरकंजी, बेसिकली दे रिकॉग्नाइज द नर्व सेल। इन्होंने क्या बताया कि नर्व सेल इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो नर्व सेल हम पढ़ रहे हैं, ये नर्व टिश्यू है, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, नर्वस सिस्टम का, एंड प्रोवाइड्स एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन अबाउट द नर्वस सिस्टम। इन्होंने हमें नर्वस सिस्टम की एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बताई और साथ ही में हमें क्या बताया कि नर्व जो सेल हैं वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, नर्वस सिस्टम का। ओके, तीसरा हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है विलियम वॉन वेल्डियर। बेसिकली इन 1891 ही प्रपोज्ड यूनिट न्यूरॉन।
देखें, यहां पे भी मैंने आपको न्यूरोलॉजी बताया, यहां पे भी मैंने आपको न्यूरॉन बताया ना मैंने आपको, ठीक है। तो अब ये जो न्यूरॉन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन पढ़ रहे हैं, तो ये जो न्यूरॉन लफ्ज हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये लफ्ज किसने दिया था? इसने दिया था, विलियम वॉन वेल्डियर, ठीक है। तो उसने क्या किया था, हम जो न्यूरॉन टर्म पढ़ रहे हैं उसने दिया था फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। अब देखें, बेसिकली जो टर्म न्यूरॉन है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि न्यूरॉन, बेसिकली जो टर्म क्या है, न्यूरॉन, ओके। बेसिकली टर्म न्यूरॉन है वो किससे लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज। अब देखें, अब ग्रीक लैंग्वेज का एक्चुअल टर्म कौन है? एक्चुअल टर्म है सीन्यू। मैं ग्रीक में नहीं लिख रहा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, सीन्यू, ठीक है। अब इस सीन्यू का मतलब क्या है? ये सेम वाला है, स्ट्रिंग या नर्व, ठीक है। तो न्यूरॉन टर्म ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड से लिया गया है? सीन्यू से लिया गया है। तो जिसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग या नर्व फाइबर या न्यूरल टिश्यू, ठीक है, नॉट न्यूरल टिश्यू, सॉरी, ठीक है। ये है सीन्यू। बेसिकली ये सीन्यू लफ्ज शुरुआत में सीन्यू ही था, लेकिन आफ्टर दिस फ्रेंच लैंग्वेज में ये एडॉप्टेशन पा गया, तो वो कौन सा वर्ड बन गया? न्यूरॉन, लेकिन उसके लास्ट में ई होगी। फ्रेंच में न्यूरॉन जो हम लिखते हैं उसमें लास्ट में ई होती है, और सिंपल जो हम अब न्यूरॉन लिखते हैं उसके लास्ट में ई नहीं होती। तो बेसिकली न्यूरॉन टर्म किस लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एक्चुअल टर्म कौन सा है? सीन्यू। अब इस वर्ड के अंदर एडॉप्टेशन हुई किस लैंग्वेज में? फ्रेंच लैंग्वेज में, तो कन्वर्ट होगा न्यूरॉन में। बात इज क्लियर? थिंग इज क्लियर? ओके, so this was little bit about the neuron. The term neuron was given by William von Weldier. Okay, if we talk about the father of nerve cell, so who will be the father of nerve cell? The father of nerve cell is Santiago Roman Ucagel. काजल सेल आपने सुना होगा, ये भी वही वाला है, ठीक है। आप मुझे बताना कमेंट के अंदर काजल सेल का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो फादर ऑफ नर्व सेल क्या है? सैंटियागो रोमन उकाजल, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ नर्वस सिस्टम की, जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फादर ऑफ नर्वस सिस्टम कौन है आपका? जैन मार्टिन चार्कोट। तो ये क्या है? फादर ऑफ द नर्वस सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम, पहले न्यूरोलॉजी से लेके अभी तक हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की। तो अब हम देखेंगे कि ये नर्वस सिस्टम है क्या, ये कौन सी बला है, ठीक है। अब हम देखते हैं, बेसिकली अ नर्वस सिस्टम इज मेड फॉर द परसेप्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नर्वस सिस्टम का काम क्या है? परसेप्शन करना इंटरनल इन्वायरमेंट की या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। अब हम अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंट्रा इन्वायरमेंट, दूसरे को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट। अब वो सेल हो, टिश्यू हो या आर्गन हो, क्या भी हो, हर किसी के कितने इन्वायरमेंट होते हैं? 2 इन्वायरमेंट होते हैं। लेट सपोज अगर मैं बात करूं सेल्स की, तो ये क्या है बेटा? सेल है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल इन्वायरमेंट। बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है, मेम्ब्रेन लगी हुई है, जिसको हम स्किन बोलते हैं। स्किन के अंदर वाला एनवायरनमेंट कौन सा होगा? इंटरनल इन्वायरमेंट। स्किन के बाहर वाला एनवायरनमेंट कौन सा होगा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये दोनों इन्वायरमेंट एक दूसरे से जुदा हैं बाय मीन ऑफ सेप्टा। उस सेप्टा का नाम क्या है? स्किन। तो मैं बोल सकता हूं कि स्किन इज सेप्टा बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज मेंट फॉर द परसेप्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को परसीव करना और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की परसेप्शन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एंड रिस्पॉन्स विद द अप्रोप्रिएट रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द मसल, ग्लैंड और ऑर्गन। देखें, लेट सपोज आप बाहर आ गए हैं और आपको ठंड लग रही है, ठीक है। तो ठंड आपको कैसे फील होगी? आपकी बॉडी को ठंड लग रही है। बेसिकली आपके जो स्किन है वहां पे न्यूरॉन्स लगे हुए हैं जो मैसेज कन्वे करते जा रहे हैं, ब्रेन को बता रहे हैं कि फला बंदे को स्किन पे ठंड लग रही है। तो उसका रिस्पांस कौन सा देता है? मसल्स आपके रिस्पांस देते हैं, ग्लैंड्स आपके रिस्पांस देते हैं,
और आपके आर्गन्स आपके रिस्पॉन्स देते हैं। आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, शिवरिंग हो जाती है, श्रिंकिंग हो जाती है, आपके हिलना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, आप अच्छे से वहाँ पे स्टैंड अप हो सकते हैं। तो ये मतलब नर्वस सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जो परसेप्शन करता है किस चीज़ की, इंटरनल इन्वायरमेंट की और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, बाय रिस्पॉन्स ऑफ एप्रोप्रिएट structures or appropriate responses, which is known as the response by the muscles, response by the glands, and response by the organs. Okay. And nervous system is the most complex. What is nervous system? A nervous system is the most complex, versatile creation of evolution. It's the most complex and versatile creation of evolution with advanced function like the learning, like the personality, like the memorization. ठीक है, ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक वाहिद सिस्टम है, एक खास सिस्टम है जो दूसरे सिस्टम के जुदा है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है आपकी नर्वस सिस्टम पे, आपकी लर्निंग क्वालिटी डिपेंड करती है नर्वस सिस्टम के, आपकी मेमोराइजेशन डिपेंड करती है नर्वस सिस्टम के। तो लिहाजा नर्वस सिस्टम पढ़ें और नर्वस सिस्टम से ही अपने आप को क्या करें, डेवलप करें।